So friends, welcome to session number 5 of this entire video series where we are deep diving into CFA level 1 syllabus, right? And today we are going to see what is included in the fifth topic, which is the financial statement and analysis. So if you have been following this video lecture series, then you would have noted that there are 10 topics in CFA level 1. We have so far deep dived into the first 4 topics, and this is the sequence in which you should follow the topics because each of these topics are interrelated and correlated, right? So we have covered the first 4 topics, which is quantitative methods, economics, corporate finance, and portfolio management. In case you have missed any of these deep dives, please go through the playlist which we have created for CFA level 1. You can find it on the video or you can find it in the description as well. Today, friends, we are going to deep dive into financial statement and analysis, which is the fifth topic in the sequence of 10 topics, which is there in CFA level 1. And trust me, friends, this is the most important topic of CFA level 1, and not just CFA level 1, but also for finance in general. Think of it as a heart. If you assume finance as a body or as a individual, then financial statement and analysis is the heart of this individual, of this domain, because understanding financial statement and analysis would actually empower you for a lot of analytical roles which will open up as you join this financial journey, right? So we'll deep dive into this, and do watch the video till the end because we are also going to take a lot of your questions which have come our way through the free CFA mentorship form. In case you also want to post your query, the link is in the comment as well as the description. Now, before we get started, friends, as I always request you, please do spread the word, like, share, subscribe, right? Because that helps this video, this awareness video, to go to many individuals just like you who are curious about CFA and its curriculum, right? So friends, what is financial statement analysis? Think of it as a खाता बुक. आप ऐसा सोचिए कि कभी भी आप कोई भी धंधा चलाएंगे, भले आप अपने घर का बजट ही क्यों नहीं चलाते, हाउ डू यू लुक एट इट? यू लुक एट द रेवेन्यू कि बॉस मेरी इतनी सैलरी आ रही है और मेरे इतने खर्चे हैं, जो बाकी बचा वो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है. सिंपल. ये खाता बुक हमारी मम्मियाँ, हमारे पापा, बाप दादा काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, तो इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है. इसको थिंक ऑफ इट एज अ खाता बुक. जब कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना खाता बुक चलाती हैं, तो उनका एक पैटर्न होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट, सेबी प्रिस्क्राइब करती है कि बॉस आप अपना खाता बुक इस फॉर्मेट में डालें. वाई? सो दैट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वेदर इट इज द इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट, योर पब्लिक मार्केट्स, दे आर एबल टू फॉलो योर खाता बुक. नहीं तो आप हर आदमी अपने हिसाब से अपना खाता बुक बनाने लगेगा. जैसे मेरी मम्मी जो है कुछ चीज़ों को जो है अपने कोड वर्ड में लिख देती थी, राइट, अपना जो उनको उनके बोलचाल की भाषा थी उसमें लिख देती थी. तो अब कोई और पढ़ेगा तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ का खाता है या क्या इसमें जो है इसका किस चीज़ का ये एक्सपेंस है या खर्चा है. तो हेंस फॉर द खाता बुक्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज to become standardized so that very easily investors, you as analysts tomorrow, public markets, they are able to follow this khata book. There is a structure which is provided by the Ministry of Corporate Affairs, by the SEBI, which regulates the market, and they prescribe this format which is called financial statements, right? इसमें 3 बड़े टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको इस टॉपिक में पढ़ाए जाते हैं. इनकम स्टेटमेंट नंबर 1. व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? इफ देयर इज अ कंपनी, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. कंपनी या तो प्रोडक्ट बेच रही होगी या सर्विस बेच रही होगी, तो उसके अगेंस्ट उसको कुछ रेवेन्यू आता है, और वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ वो खर्चे उठाता होगा. भले वो मार्केटिंग कॉस्ट है, अपने सेल्स के लोगों का कॉस्ट है, उसकी कंपनी का कॉस्ट है, राइट, एटसेट्रा. तो वो सारे जो है कॉस्ट में आ जाते हैं. सो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो बना, वो या तो उसका मुनाफा बन रहा है या लॉस बन रहा है. तो ये जो पूरा खाता एक जगह होता है जहाँ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस एक जगह डिपिक्ट होता है, उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल स्टेटमेंट. पीएनएल स्टेटमेंट, पीएनएल, पी एंड एल अलग अलग तरीकों से लिखते हैं, विच इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. तो द फर्स्ट सब टॉपिक अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस विच यू विल लर्न इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट. अब आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों ये पढ़ाया जाता है. क्योंकि भाई अगेन, कभी भी इफ यू हैव टू एनालाइज एनी कंपनी कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, इस कंपनी में मैं पैसा डालूं, मतलब इसके स्टॉक्स लूं, नहीं लूं, इसको कल को डेट दूं, नहीं दूं, वो डिपेंड करेगा कि उसका इनकम स्टेटमेंट कैसा दिख रहा है, प्रॉफिट लॉस कैसा दिख रहा है. एंड हेंस इनकम स्टेटमेंट्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट.
और इसीलिए पहली चीज जो आपको इस टॉपिक के अंदर समझाई जाती है वो है इनकम स्टेटमेंट, राइट। तो ध्यान रहे दोस्तों, हम इस पूरे वीडियो सीरीज में खाली ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने दोस्तों बहुत सारी चीजें पहले भी अपने जीवन काल में, अपने स्टूडेंट लाइफ वी हैव रेड, but we have hardly found any relevance of it in the practical world. So my intent through this video series is also to give you a perspective that why the hell are you reading or learning certain things in CFA? How is it relevant for you tomorrow when you become analysts? Number 2 subtopic is balance sheet. What is balance sheet, friends? Very very simple कि यार जब आप कंपनी को बड़ा कर रहे होते हो तो कंपनी के अंदर कुछ एसेट्स बुक करते हो। व्हाट आर दीज एसेट्स? कि कल को यार आप एक ऑफिस स्पेस लेते हो तो वो एक एसेट हो सकता है, कल को आप प्लांट या मशीनरी लगाते हो अपनी कंपनी के अंदर, वो एक एसेट हो सकता है, राइट। कल को आप एक ज़मीन खरीदते हो जिसके ऊपर पूरा अपना जो है प्लांट या बड़ी मशीनरी खड़ी करते हो, बड़ी फैक्ट्री खड़ी करते हो, तो वो एक एसेट हो सकता है। सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये रेवेन्यू या कॉस्ट नहीं है। क्यों कॉस्ट नहीं है? क्योंकि ये जो आप एसेट बना रहे हो, एसेट लंबे समय तक, आज आप एक फैक्ट्री लगाओगे तो खाली साल भर तक उसका फायदा नहीं होगा, आगे 10-20 साल तक उसका फायदा होगा। तो इस टाइप की जो चीजें एक कंपनी बनाती है उसको बोलते हैं एसेट। जैसे आप जब घर बाहर खाना खाने जाते हैं तो दैट इज व्हाट, दैट इज एन एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में है। बट जब आप एक घर खरीदते हैं तो वो एक एसेट है, उस घर में आप अगले 20-30 साल रहेंगे, 2 पुश्तें 3 पुश्तें रहती हैं हमारे घरों में, तो वो एक एसेट है। और वो आपके अगर घर का पीएनएल बनाया, घर का इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता या घर के फाइनेंशियल्स बनाए जाते तो उसके एसेट में आता। तो ये सारे एसेट्स जो होते हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं। सिमिलरली दोस्तों, एसेट को बनाने के लिए व्हेन यू वांट टू क्रिएट एसेट्स, यू जनरली टेक लोन। जैसे घर बनाने के लिए व्हेन यू वांट टू क्रिएट होम, देन व्हाट डू? यू बेसिकली टेक लोन। तो लोन एक लाइबिलिटी है। व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी इज समथिंग व्हिच यू हैव टू पे बैक, राइट, टू द लेंडर, जिससे आपने ये लिया है। तो जितनी भी लाइबिलिटीज के आइटम होते हैं वो भी एक लंबे समय तक आपको चुकाने होते हैं। लोन ऐसा नहीं कि आज आपने 1 करोड़ का लोन लिया घर बनाने के लिए तो परसों आपको उसको वापस करना है। आप उसको अगले 20-30 साल में, लोन जनरली इंडिया में होम लोन्स 30 ईयर्स 20 ईयर्स के लोन आते हैं, तो वो आपको लंबे समय तक वापस करने हैं ईएमआई भर के। तो एनीथिंग विच इज टू बी पेड इन लॉन्ग लॉन्ग टर्म, राइट, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। और हेंस एसेट्स वो चीजें जो आपको लंबे समय तक फायदा देंगी, एंड लाइबिलिटीज वो चीजें जो आपको लंबे समय में चुकानी है, उनको हम बैलेंस शीट का आइटम बोलते हैं। और वो बैलेंस शीट के अंदर कैसे प्रस्तुत किया जाता है, हाउ डू यू प्रेजेंट दैट, राइट, एंड व्हाट आर द नुआंसेस, निटी-ग्रिटीज ऑफ इट, दैट इज टॉक टू यू इन द सेकंड सब टॉपिक ऑफ अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस व्हिच इज कॉल्ड बैलेंस शीट। थर्ड है दोस्त व्हिच इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो बहुत क्रिटिकल चीज होती है, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन कंपनीज जनरेट रेवेन्यू, so they actually, what do? They sell certain things, they get they get their money. But generally what happens is, lot of sales which happens, friends, it happens in the form of credit, which means अगर आज मैंने एक बड़ी फैक्ट्री ने किसी होलसेलर को माल बेचा तो इमीडिएटली उसको पैसा नहीं मिलता, उसको कुछ एक क्रेडिट मिलता है कि ठीक है यार, तुम 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में पैसे लौटा देना। तो हेंस योर रेवेन्यू एंड कैश इज नॉट गोइंग हैंड इन हैंड, विच मीन्स रेवेन्यू आज आपने रियलाइज कर लिया कि ठीक है यार मैंने ये सेल की, बट आपका जो कैश आया वो हो सकता है देर से, राइट। सिमिलरली आपने जिनसे बोरो किया पैसा, वो आज हो सकता है आपने पैसा ले लिया, बट इसको आप चुकाएंगे आगे आने वाले समय में इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई, राइट, जिसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है और प्रिंसिपल का कंपोनेंट। हेंस कैश फ्लो टेल्स यू कि आज आपके खाते में कितना पैसा आया, क्योंकि रेवेन्यू इज नथिंग, जो इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू जाता है वो होता है सेल्स, बट कैश फ्लो में जो कैश आता है वो एक्चुअली वो पार्ट ऑफ सेल्स होता है जो आपको कैश के फॉर्मेट में आ गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्रेंड्स, इज वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज थिंक ऑफ इट दिस वे फ्रेंड्स, दैट से आई एम डूइंग वेरी वेल, आई एम डूइंग लॉट ऑफ सेल्स, बट अगर मेरे पास पैसा ही नहीं वापस आ रहा है, या पैसा जो है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के अंदर आ रहा है, तो मैं अपने एम्प्लॉइज को अपना रेंट भाड़ा, अपने जनरल एक्सपेंसेस कैसे बियर करूं? तो इवन दो इफ माई सेल्स इज वेरी गुड, बट इफ द कैश इज नॉट कमिंग इन, then that is a red flag for the company, because then कंपनी का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या अगर उसको चलना है तो फिर उसको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए उसमें पीएनएल के लिए लाभदायक नहीं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो ये सारी चीजें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पढ़ाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। नाउ द फोर्थ सब टॉपिक अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और याद रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस काफी विशाल टॉपिक है। ये जो टॉपिक है इसमें कई सारे, अगर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा लेक्चर्स इस टॉपिक के अंदर है, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से आपको एक एक सब टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया है। इनफैक्ट
मैंने भी IIM इंदौर के अंदर जो मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कनगराज, आज वो एक्सेल राय में पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हमें पढ़ाया था और मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैंने सीखा था वो मैं उसी बढ़िया तरीके से आपको समझाऊं। तो अगर आप एनरोल करते हैं हमारे सीरीज तो आप ध्यान देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम भी अपनी लेक्चर सीरीज में बहुत ज़्यादा समय डालते हैं और बहुत एक इंटरेस्टिंग वे में, जिस इंटरेस्टिंग वे में मैंने पढ़ा था उस इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको भी पढ़ा। फिर अगला सब टॉपिक है इन्वेंट्रीज। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि व्हेनेवर कंपनीज आर इन एनी बिजनेस अ लॉट ऑफ टाइम दे हैव इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज नथिंग बट फ्रेंड्स रॉ मटेरियल। ऐसा सोचिए कि मैंने जो है गेहूं जो है किसानों से खरीदा, उसको अपने गोडाउन में रखा और फिर 20-30 दिन लगाकर उस गेहूं से आटा पीस के जो है अपना में भी अगर मैं आईटीसी हूं तो मैं जो है आशीर्वाद आटा पैकेटों में पैक करके फिर आगे कुछ टाइम बाद बेचूंगा। तो ये जितने टाइम तक मेरा रॉ मटेरियल या इवन मेरा फिनिश गुड जब तक बिकता नहीं है मार्केट में, तो वो गोडाउन्स में, स्टोरेज प्लेसेस में पड़ा रहता है और वो इन्वेंट्री कहलाता है। तो इस सब टॉपिक इन्वेंट्री में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि इन्वेंट्रीज को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, इफ इन्वेंट्रीज आर हाई और लो, what does it reflect, is it good for the company, bad for the company, etc. Then the next subtopic is long term assets. What are long term assets friends? Very very simple. ये बेसिकली डबल क्लिक है बैलेंस शीट का। तो आपको पहले सेकेंड सब टॉपिक में बैलेंस शीट पढ़ाया जाता है, फिर इस पर डबल क्लिक किया जाता है और आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, राइट। तो जो बैलेंस शीट होता है उसमें एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती है। जैसे इन्वेंट्री भी एक एसेट है, राइट, क्योंकि आपके गोडाउन में पड़ा है वो आपका है। बट इन्वेंट्री लंबे समय तक नहीं पड़ी होती, क्योंकि नहीं तो फिर तो खराब हो जाएगी। इसका मतलब लंबे समय तक अगर आपके गोडाउन में इन्वेंट्री पड़ी है तो इसका मतलब आपका धंधा चल नहीं रहा है, तब तो दिक्कत है आपकी कंपनी की। बट ठीक है, थोड़े समय तक 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के लिए इन्वेंट्री है तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर की डिमांड आएगी और आप उसको निभा नहीं पाए। तो इन्वेंट्री जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट कहलाती है। मतलब वो होती तो एसेट है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनीज अपने पास होल्ड करती हैं जब तक उसकी सेल ना हो जाए। बट लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो मैंने आपको समझाया, जो फैक्ट्रीज होती हैं, या अगर आपने जो है ऑफिसेस बनाए, फैक्ट्रीज बनाई, जमीन खरीदी अपने कंपनी के काम के लिए, तो वो लंबे समय तक इट गिव्स यू रिटर्न्स एंड दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो ये एसेट्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? ज़्यादा लॉन्ग टर्म एसेट अच्छा होता है, बुरा होता है? कैसे ये एसेट जो है धीरे धीरे, क्योंकि आज आपने एक बिल्डिंग ली या आज आपने जो है एक फैक्ट्री बनाई, तो वो आज 20 साल बाद उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। धीरे धीरे वो बिल्डिंग्स जो है उसमें डैमेजेस होंगे, उसमें वियर एंड टियर होगा। तो किस तरीके से एसेट्स को वैल्यू करते हैं, उसके वैल्यूएशन के तहत कैसे वो इनकम स्टेटमेंट या आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट करता है आपको, कैसे कंपनियां जल्दसाजी करती हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में, ये सारी चीजें आपको इट इज टॉट इन दिस लॉन्ग टर्म एसेट्स। एसेट क्या ही दूसरा पार्ट, रिमेंबर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। अगर एक साइड एसेट है तो दूसरी साइड लाइबिलिटी है, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर किसी को एसेट बनाना है तो ऐसे जादू की छड़ी चला के तो एसेट आएगा नहीं। कहाँ से आएगा? लाइबिलिटीज से आएगा। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज होता है जब आप बाजार से लोन लेते हैं या बाजार में आईपीओ करके अपना इक्विटी रेज करते हैं, तो ये सारी चीजें लाइबिलिटीज कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपको जो आप पैसा उठा रहे हैं मार्केट से एसेट्स बनाने के लिए या अपनी और काम करने के लिए, वो एसेट को चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाएंगे तो कल को आपकी कंपनी पे कब्जा कर लेंगे ये लोग जिनसे आपने पैसे लिए। इसीलिए इनको लाइबिलिटीज बोलते हैं। और लाइबिलिटीज किस किस प्रकार की होती हैं, कैसे लोग कैसे कंपनियां अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए लाइबिलिटीज का उपयोग करती हैं, लाइबिलिटीज कौन सी अच्छी होती हैं, कौन सी बुरी होती हैं, ये सारी चीजें आपको इस सब टॉपिक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड इक्विटी में समझाया जाता है। और आप खुद ही देख पा रहे हैं कि व्हाट इज द implication of all this. So tomorrow friends, a lot of you show interest in equity analyst roles, investment banking roles, credit analyst roles. All these roles involve solid understanding of these nuances of financial statement and analysis, क्योंकि इन्हीं nuances को आप स्टडी करके ये बताते हैं कि जिस कंपनी में आप स्टॉक खरीदने वाले हैं वो बढ़िया कर रही है, नहीं बढ़िया कर रही है, राइट, उस कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये सारे सब nuances आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों आते हैं इनकम टैक्सेस। सो एट द एंड ऑफ द डे हर कंपनी को ऑफकोर्स अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर दी है तो इनकम टैक्सेस लगते हैं और टैक्सेस लगेंगे, राइट, उसकी इनकम पे, जो कॉर्पोरेट टैक्स भी कहलाता है। तो ये टैक्सेस किस प्रकार के होते हैं, क्या करती हैं कंपनियां ताकि वो अपने टैक्सेस को ऑप्टिमाइज करती हैं, कम करती हैं, टैक्सेस कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं कंपनीज को, वो सारी चीज़ें आपको इनकम टैक्सेस में पढ़ाई जाती है। देन फ्रेंड्स द लास्ट 3 टॉपिक्स विच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग। दिस इज सुपर क्रिटिकल। ये आपको हाई लेवल पे लेवल 1 में समझाया जाता है और इसकी बहुत डेप्थ में आप लेवल 2 में जाएंगे, राइट, जब आप सीएफए लेवल 2 करेंगे। बट लेवल 1 में आपको ये तीनों क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि अगेन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स दैट आज सीएस या आज कंपनियां बहुत स्मार्ट है, वो बहुत अच्छे तरीके से ना अपना कंपनी के फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करती, ताकि अगर एक आम आदमी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे, इनकम स्टेटमेंट्स को देखे या उनकी बैलेंस शीट को देखे तो बोले वाह यार ये कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है। बट ये तीनों टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप एक आम आदमी से उठ के यू विल बिकम अ ट्रूली गुड सीएफए एनालिस्ट, जहां पर
कि सच के आसपास के झूठ को पकड़ने की शक्ति आपको मिल जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत बार कंपनियां क्या होती हैं फ्रेंड्स, कि कंपनियों पे लगातार एक प्रेशर होता है एनालिस्ट की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, कि भाई अपना रेवेन्यू ऊपर ऊपर दिखाओ। अब बहुत बार ऐसा होता है कि रेवेन्यू ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि उतनी सेल नहीं हुई है या किसी कारणवश ऊपर नहीं गया। तो कंपनियां को पता है कि अगर मैं यार रेवेन्यू फ्लैट दिखाऊंगा या कम ग्रोथ दिखाऊंगा तो हो सकता है मेरा स्टॉक पिट जाए। तो कंपनियां क्या करती हैं, थोड़ा जालसाजी करती हैं। वो अपने इनकम, मान लीजिए मैं जो है कपड़े की कंपनी, तो मैं कपड़ा लेता हूँ, रॉ मटेरियल लेता हूँ, उसमें अच्छी कारीगरी करता हूँ और बेचता हूँ। मान लीजिए इस साल मेरा नहीं बिका, राइट, इस क्वार्टर में मेरा नहीं बिका, तो मुझे इनकम तो ज़्यादा दिखानी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं क्या करता हूँ, एक पुरानी पड़ी हुई जमीन को बेच देता हूँ, उससे एक इनकम आ गई, उससे प्रॉफिट आ गया। तो जो आम व्यक्ति है, आम इन्वेस्टर है, उसको तो लगता है वाह यार इनकम तो इस बार भी बढ़ी, तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। बट आप जब एनालिस्ट बनेंगे और ये सारे टॉपिक्स को पढ़कर बनेंगे, तो यू विल गेट टू नो दैट ओ हो, दिस इज नॉट द कोर इनकम। कोर इनकम मतलब कि वट एवर दिस कंपनी डज, दिस इनकम हैज नॉट बीन जनरेटेड around this core business. This has been generated just as an eyewash so that it gives you an impression कि कंपनी की इनकम बढ़ रही है, बट एक्चुअली में उसकी जो कोर इनकम है, कोर काम करने से वो नहीं बढ़ी, बट आपने पेरीफेरी में कुछ जमीन बेच दी, एक फैक्ट्री बेच दी एक्सेट्रा, या आपने कुछ शेयर्स पड़े हुए थे, राइट, उसको बेच दिया और उससे जो है आपने एक इनकम दिखा दी। तो वो एक रेड फ्लैग की तरह होता है। आप उस इनकम को हटाकर कोर इनकम देखते हैं कि बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर वो नहीं बढ़ी तो वो फिर आपके लिए रेड फ्लैग, राइट। सो आई होप this is getting clear to you, and hence these are some of the techniques in the last three topics which you will learn, through which you will truly become an analyst rather than a common person, right? So friends, I hope this gave you a lot of perspective. आप खुद देख रहे हैं कि कितना बड़ा स्पेक्ट्रम कवर होता है, बट आपने फिगर एकदम नहीं करनी है। If your why of CFA is clear, please do join our sessions and you will love the way I have taught this entire topic, right? Now let's quickly go to Q&A, right? Sangram Rajendra Shinde has asked that he has recently completed class 12th in the science stream, very good, and he wants to make a career in the field of asset management, which is effectively equity research analyst. So can you tell me the roadmap for the same? पहले तो संग्राम कूडोज यार, जब मैंने 12वीं पास की थी मुझे तो हवा ही नहीं था क्या होता है करियर, क्या नहीं होता है, एक्सेट्रा. सो टुडे इफ यू हैव कम टू दिस फोरम प्रेजेंटिंग योर थॉट्स सो वेल that you are actually looking at a career, 3 years, 4 years down the line, it is a great forward thinking. So keep it up. So संग्राम यार, आप एकदम एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी ना यार, ये एनालिस्ट रोल्स जो होते हैं या फाइनेंस के रोल्स जो होते हैं, उसमें दो ही चीजें यार लगती. एक, योर नॉलेज बेस हैज टू बी कंप्लीट, विच मीन्स यू शुड बी एन ऑलराउंडर. अगर आपको, क्योंकि आप कभी भी यार जब फाइनेंस के अंदर चीजें करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है, मैक्रोस क्या है, मतलब जीडीपी उस कंट्री की कैसे जा रही है, वो कंपनी जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं वो कैसी जा रही है, उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कैसे जा रहे हैं, रेगुलेटरी एंड लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीजें मिलकर एक कंपनी की परफॉर्मेंस डिसाइड करती हैं. एंड हेंस the number one thing which you need to succeed as an equity research analyst is that you need to have knowledge, complete knowledge of finance. खाली एक पहलू ऑफ फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस को एक हाथी की तरह समझिए, तो इतना बड़ा हाथी है, अगर उस हाथी की खाली पूंछ के बारे में आपको पता है या खाली सूंड के बारे में आपको पता है, then you will not be able to do justice to these roles. So number one criteria is that you should know A to Z of finance. And what is that course which will help you do A to Z of finance? That is CFA, because CFA is a generalist course, number one. The second thing here which you need to excel in these equity research analyst profiles is that you need to have a global brand on your profile. Why? Because Sangram, when you go to your clients, to your investors, they don't know who Sangram is. For that matter, they don't even know who Harmeet is. But Harmeet के नाम के आगे, संग्राम के नाम के आगे जब कोई ब्रांड लगा हुआ है, अच्छा जी संग्राम has done CFA, then CFA gives you that global brand, which will then empower or which will then push you forward with this such a powerful brand where your clients and investors will have more trust on you and your profile. So both these things are given to you via CFA, because CFA teaches you A to Z of finance, and it has a global brand which is prevalent in more than 20-30 countries of this world. And hence, your roadmap should be very clear. You are at a very, very critical juncture of your career. 12th के बाद आप या तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, now is the time to start your preparation of CFA, so that by the time you enter second year, CFA allows you to write level 1 in your second year and level 2 in your final year. So do not miss these two levels before you qualify your graduation, because trust me Sangram, it will give you such a huge head start vis-a-vis your peers that after you are done with your graduation, आपका तबका अपने बाकी कोहोर्ट से बहुत ऊपर उठ चुका होगा, अगर आपके पास 2 levels of CFA है, क्योंकि आपका नॉलेज संपूर्ण हो चुका होगा एंड आपका ब्रांड ग्लोबल आ चुका, राइट. सो संग्राम, आई विश यू ऑल द लक. डू एक्ट ऑन दिस इंफॉर्मेशन, स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फास्ट. सौम्यदीप त्रिपाठी, इन्होंने बड़ा मासूम सा 2 शब्दों का, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है सौम्यदीप त्रिपाठी. इन्होंने 2 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स CFA.
तो मेरे भाई CFA इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। अगर फाइनेंस में आपको करियर बनाना है तो CFA करना ही पड़ेगा, ये आप लेकर चलो। आपको मैं अपना एग्जांपल देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। दैट यार आई वाज वेरी प्राइडफुल एंड आई थॉट यार कि वाह यार मेरे पास IIT की डिग्री भी आ गई, अब मेरे पास IIM की डिग्री भी आ गई, तो यार अब तो मैं जो चाहूँ उसमें करियर बना सकता हूँ। बट दैट वाज द टाइम यार बैक इन 2010 व्हेन आई गॉट दिस रियलाइजेशन दैट आई रियली वांट टू क्रिएट अ करियर इन फाइनेंस। तो कोई उपाय नहीं है यार, ये ग्लोबल ब्रांड मुझे चाहिए ही चाहिए होगा, जो मैंने अभी जो है संग्राम को भी बताया। तो हेंस यार दिस इज व्हाट इज CFA ऑल अबाउट। इट इज अ ग्लोबल ब्रांड एंड अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। आपको मैं फुल फॉर्म से बोर नहीं करूंगा, वो गूगल भी कर सकते हैं। बट आप ये समझिए कि कल को अगर आपको फाइनेंस में करियर बनाना है तो ये करना ही पड़ेगा। CFA के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। तीसरे लेवल की आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि तीसरा लेवल उतना ज़्यादा एज आपको देता नहीं है। 2 लेवल CFA के करने हैं। सेकंड लेवल इज द टफेस्ट। ऑन एन एवरेज यार जो है आपको 15 महीने लगते हैं लेवल 1 प्लस लेवल 2 करने में, 6 मंथ्स लेवल 1 और 9 मंथ्स लेवल 2। हमारा कोर्स है यार जिसके थ्रू आप ये लेवल्स बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव कंडक्टेड दिस इंटायर लेक्चर सीरीज इन अ वेरी वेरी इजी एंड प्रैक्टिकल मैनर। प्रैक्टिकल मैनर मतलब जो आप यार बिजनेस वर्ल्ड और फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक्चुअल एग्जांपल्स करते हुए देखते हैं, उन एग्जांपल्स को मैं कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट करता हूं ताकि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द करिकुलम, द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो टेक अप लॉट ऑफ एक्सेल्स टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको लॉजिकल वे में पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो डू इनरोल फॉर द लेक्चर सीरीज। द लिंक ऑफ इट इज इन द डिस्क्रिप्शन। Aditya Wagmare. He says, yeah, that I wanted to, appear for the exam in November of 25, right? Because he believes that, yeah, Aditya believes that by then he will be able to do some internship, courses, etc., right? And then he will get free. But I also feel that that's wrong approach, so I really need guidance. So देखो आदित्य यार, मेरा ओनली वर्ड ऑफ एडवाइस है कि यार ये सब जो टैक्टिक्स है ना कि ये हो जाएगा उसके बाद मैं CFA की तैयारी करूंगा, राजस्थान रॉयल्स IPL जीत जाएगा तब मैं करूंगा, इस बार यार जुलाई में बारिश जल्दी होगी तो मैं करूंगा। यार ये पता है क्या है, ये आपका दिमाग ना शॉर्ट टर्म पेन को ऑप्टिमाइज करा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आवर माइंड यार विल ऑलवेज ट्रिक अस टू ऑप्टिमाइज फॉर शॉर्ट टर्म पेन। शॉर्ट टर्म पेन क्या है कि आपको तैयारी करनी होगी, दिन में 90 मिनट जो है 1.5 घंटा इस तैयारी में देना पड़ेगा। ये जब तैयारी करेंगे तो आपको बहुत बीच बीच में चिड़चिड़ापन होगा कि क्या यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट आपको लगे रहना पड़ेगा। तो ये सारा शॉर्ट टर्म पेन है जिसका एक्चुअली आपको दिमाग क्या करता है, वो बोलता है यार अभी शॉर्ट टर्म पेन क्या ही ले रहे हो, आगे सोच। एंड हेंस यार यू आर गोइंग इनटू दिस ह्यूज प्लानिंग मोड जहां आप आज 2024 में बैठ के 2025 की बातें कर रहे हैं और वो भी नवंबर 2025 की बातें। क्यों? क्योंकि यार जो है आपका दिमाग आपको धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट करने की तरफ मूव कर रहा है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब कि चीजों को टालना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, राइट? तो यार वो नहीं करना है आपको। कबीर जी जो बोल के गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इसीलिए यार इसमें आपको कोई दो मत नहीं है। अगर आपको मन क्लियर है कि CFA करना है तो द ब्यूटी ऑफ CFA इज यार दैट यू नीड नॉट सैक्रिफाइस एनीथिंग एल्स। आप नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हैं, देखिए। आप सैटरडे संडे अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, घूमिए। आप जो है कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, करिए। आप बस डेली 90 मिनट निकालिए। जस्ट टेक आउट 90 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस। अगर वो भी नहीं है तो 45 मिनट निकालिए। बट यार ये 45 मिनट से 90 मिनट दिन में निकालिए। टेक माई सीरीज, लेक्चर सीरीज में मैंने बहुत अच्छे से इस करिकुलम को समझाया हुआ है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके वहाँ डेमो सेशंस बहुत सारे देख सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर आज आपके क्वेश्चन समझा रहा हूँ, वैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, तो आपको बहुत आनंद आएगा उस सीरीज से प्रिपेयर करने। तो उस आनंद में डूबिए। जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाएंगे आपको बहुत क्लैरिटी लगेगी इस कोर्स के बारे में और आप ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएंगे। अदरवाइज इस प्लानिंग का कोई अंत नहीं है। मैंने यार लास्ट 5-6 सालों में हजारों बच्चों को पढ़ाया और मैंने यही देखा है यार कि भाई 2 ही टाइप के लोग, एक जो आज प्रिपरेशन शुरू करते हैं और अगले 2-3 महीने में डिसाइड करते हैं कि भाई अब कब एग्जाम लिखना है, और दूसरे हैं जो बस भाई प्लानिंग कर रहे हैं, वो 24 में बैठ के 25 में कर रहे हैं। बिलीव मी यार, नवंबर 25 तक का प्लान तो आज मोदी जी नहीं बनाते यार, वो 100 डेज का प्लान पे आ गए। तो ये तो आप यार कांग्रेस का 1990 में जैसे कांग्रेस ऑपरेट करती थी, 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, वैसे ऑपरेट कर रहे हैं। वैसे नहीं करना है। छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाइए। स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे, एंड दिस स्टेटस क्वो बायस, एंड दिस इनर्शिया, एंड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। 2-3 महीने बाद आपको खुद समझ आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। ये जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस है ये आपके सामने अनफोल्ड होना शुरू होगा। आपको रियली ये दुनिया क्या है फाइनेंस की वो समझ आने लगेगी और फिर आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि आपको कब ये एग्जाम लिखना चाहिए। प्रियांशु सिंह, वेदर टू डू MBA और CFA। प्रियांशु यार ये तो बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, मैं आपको अगेन फिर आंसर करूंगा कि यार MBA और CFA गलत कंपैरिजन है। MBA डिग्री है मेरे भाई, CFA इज अ ब्रांड। ऑलवेज गो फॉर ब्रांड एंड हेंस योर रियल क्वेश्चन शुड बी, should I do MBA from a premier institute or should I do CFA? Because premier institute MBA is a brand just like CFA। ठीक है। So, अब यार अगर ये डन हो गया तो सिंपल है यार। अगर यार प्रीमियर इंस्टीट्यूट MBA अगर आप करते हो तो आपका चांस 1% है प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाने का, क्योंकि उतनी ही सीटें
आज 3.5 4 लाख 5 लाख बच्चे कैट का एग्जाम लिखते हैं। प्रीमियर इंस्टीट्यूट में यार हजारों में सीट्स है, लाखों में तो है ही नहीं। तो इसीलिए 1% चांस है कि आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाओगे। हैविंग सेड दैट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाने के बाद भी आपके सामने सच एक लाइव एग्जाम्पल है। जब मैं IIM इंदौर गया, जो कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री के में है, तब भी मुझे MBA करना, CFA करना पड़ा, क्योंकि CFA तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके बगैर तो आप फाइनेंस के अंदर बहुत मुश्किल है करियर बनाना। तो हेंस यार, प्रीमियर इंस्टीट्यूट MBA में अगर एडमिशन मिलता है तभी MBA करने का फायदा, नहीं तो फायदा ही नहीं। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर 15-20 lakhs. सेकेंड इज दैट यार, इवन इफ यू गेट इनटू अ प्रीमियर MBA इंस्टीट्यूट, यू विल हैव टू डू CFA। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मुटप्पा सनाडी, राइट। इन्होंने 3 छोटे छोटे सवाल पूछे हैं। आई थिंक सारे सवाल जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अराउंड है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैन आई बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। भाई आप कुछ भी बन सकते हैं, आप एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। तो बनने को तो पहला सवाल जो है वो कुछ भी बन सकता है। हाँ, क्या आप वो पाथ फॉलो कर रहे हैं टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर? तो वो डेफिनेटली, अगर वो पाथ CFA है तो डेफिनेटली आप वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि CFA यार आपको वो सारी चीजें सिखाता है, प्लस वो आपको ब्रांड देता है जिससे आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। ध्यान रहे मुटप्पा कि यार ये ब्रांड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग द brand on your profile is supremely critical, because if you don't have brands, these clients, you will be unable to work for these big clients, because the clients want that the analysts who are working for their companies, for their decision making, etc., for their M&A deals, for their IPO deals, right, for their sale and buy, all these analysts should come from reputed institutes or reputed brands like CFA. Otherwise they will have that uneasiness, right, to trust these people. And that is why brand becomes very powerful, and that is why so many people do CFA to get into investment banking roles. Your second question is your skill sets. Remember this, Mutappa, that only focus on CFA as a brand. A lot of these skill sets will keep getting developed. जैसे मैंने आपको बताया कि यार CFA also teaches you in level 1 some part of financial modeling. If you take our course, you will also learn a lot of Excel. So इससे आपको थोड़े थोड़े skill sets already आ जाएंगे, बाकी you will learn as you go in these financial jobs. The only skill set which I would recommend, not just to you but everybody listening to this lecture, is that yaar, you should always have a logical bent of mind. Never ever get into the trap of rote learning. Always ask why. Like in this lecture series also, where I'm explaining you the CFA level 1 syllabus, I am not just telling you ki what is there in the syllabus. I'm also telling you and educating you on why this is part of the syllabus. So always have that inclination of asking the why, asking the logical questions, and having a logical bent of mind in this preparation. Number 3, can I earn lakhs per month after I become investment banker? But again, here, these are all the outcomes. When Modi would have started his political journey as a normal worker in BJP, he would never have imagined to become a prime minister, right? Never ever. 30-40 years ago, when he left his house at an early age and he started working for the sun and working for the public at large, he would never have imagined that one day he will be the most admired PM of the country and maybe the world. But all that is outcome. Similarly here, yeah, once you have the complete knowledge of finance, which will be provided by CFA, once you have the global brand on your profile, which is again coming through CFA, then automatically this earning in lakhs, earning in crores, etc., is an outcome which will happen. Always trust the process. Rahul Dravid also says this about the team. Remember, few years back, I think couple of years back, when Rahul Dravid had took over, in between, yeah, there was a lean period for Indian cricket where they lost a couple of series. And Rahul Dravid only had one comment, that, yeah, we are working on a process. We will just trust the process. A lot of times you would have seen big players like Kohli, Rohit Sharma, etc., saying that, yeah, we are trusting the process, we are backing the process. What is the meaning of process? Process is nothing but input. Victory, right? Earnings, salary, all this is an output which will happen if your input is good. And trust me, CFA as an input on your profile is a great thing to have. All these things of salary, etc., is an output which will eventually happen. Okay, so great guys, lovely chatting and giving you answers of a lot of your queries. I hope this topic number 5, which is the most critical topic of not just CFA level 1 but level 2 and level 3 as well, is clear to you, which is financial statement and analysis. I hope the why of what you will learn here is also clear. In case you have any other queries related to finance, related to CFA in general, please do go to the link in the description, as well as the first pinned comment of this video has the free CFA mentorship form. You can post your queries just like so many others who we spoke about today. Also, in case you want to enroll for the course here, the link is in the description. Go through it, watch a bunch of our demo videos. Don't trust me, trust those demo videos. See if I am able to connect you to this beautiful world of finance. And if you like the course, you can enroll for it at a very, very nominal price. So thank you, folks. That's all for today. I will see you in the next video, right, with more insights on, everything about CFA. Thank you so much. Bye-bye.